students, welcome to digital platform of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. I am Dr. Tarun Kumar Gupta, Associate Professor in Department of Mechanical Engineering, GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida. Students, here we are discussing the subject Power Plant Engineering. The subject code is KME 076. This is our 24th lecture in this series. Today we start nuclear power plant. So, this is our first lecture in nuclear power plant. So, you must know about the introduction of the nuclear power plant. The base of nuclear power plant is some radioactive material. So, before discussing the function and working of any nuclear power plant, you must know some introduction, some idea about atom and atomic structure, etc. So, first of all we will discuss a brief idea about atomic structure. So, dear friends, all of you know that element is defined as a substance which cannot be decomposed into other substances. ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है, आप सब जानते हैं, बट एक इसको हम रिमाइंड कर रहे हैं, जस्ट रिफ्रेश कर रहे हैं आपके माइंड में, सो दैट आपको जो आपने जो पढ़ा हुआ है वो सारा एक बार रिकॉल हो जाए. The smallest particle of an element which takes part in chemical reaction is known as an atom, right? अब आप जानते हैं एटम वर्ड कहाँ से आया. This word atom is derived from Greek word atom, which means indivisible, and for a very long time the atom was considered as such. I told you for a very long time, right? लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब एटम को डिविजिबल कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया. So, our changing view about the atom. So, सबसे पहले बताया गया था एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. दिस वाज द अर्ली ग्रीक philosophies around 400 BC, right? This was early Greek philosophy. Now, next theory was given by J. J. Thomson in 1898 to 1903, and he said negative electrons are embedded in a sea of positive charge. ठीक है. Then there was a model of Rutherford Ernst model in 1911. He said पॉजिटिव चार्ज इज लोकेटेड विद इन अ सेंट्रल न्यूक्लियस. इसके बाद एक और मॉडल आया, हमने नाम दिया उसको नील बोर मॉडल और नील बोर थ्योरी आप कह सकते हैं. इन 1913, जस्ट 2 years आफ्टर रुदरफोर्ड मॉडल, एंड ही सेड इलेक्ट्रॉन्स आर इन सर्कुलर ऑर्बिट विद क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल. ठीक है. आज की डेट में जो हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, जो मॉडर्न मॉडल है, ही सेड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई रीजन ऑफ स्पेस whose shape is described by complex mathematical equations. एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर शो किया हुआ है. ये एक एटम है, कार्बन एटम. यू कैन सी इन द कार्बन एटम देयर आर 2 ऑर्बिट्स, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स. दिस ग्रीन नेगेटिव आर इलेक्ट्रॉन्स, आई हैव ऑलरेडी मेंशन इट. पॉजिटिव ब्लू आर द प्रोटॉन, एंड ऑरेंज who has not known neither negative sign nor positive sign. So, these are proton. So, neutron. So, proton and neutron are in the nucleus, in the center you can see, and electrons, 6 electrons are on outer orbits, right. So, here we can say in the center, in the nucleus there are 6 proton and 6 neutron, right. Okay. So, देखिए केमिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ आवर इंटरेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट. सो इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट देयर इज ए न्यूक्लियर प्रोसेस. ठीक है. अब न्यूक्लियर प्रोसेस, देयर आर 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियर प्रोसेस. वन इज न्यूक्लियर फिशन, अदर इज न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट. सो दोनों के बारे में बहुत थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैं आपको देता हूँ. व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन. अब न्यूक्लियर फिशन क्या होता है. न्यूक्लियर फिशन इज द स्प्लिटिंग ऑफ ए हैवी अनस्टेबल मटीरियल, or you can say unstable nucleus, such as uranium 233, uranium 235, plutonium 239 into 2 or more lighter nucleus. एक एग्जाम्पल, एक डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया हुआ, अगर आप देख सकते हैं. सो देर इज ए यूरेनियम 235, ये आप देख रहे हैं, यूरेनियम 235 है. ये इलेक्ट्रॉन का इसके ऊपर बम्बार्डमेंट किया गया, सॉरी न्यूट्रॉन का, एन मीन्स न्यूट्रॉन का इसके ऊपर बम्बार्डमेंट किया गया. सो it will split first, it convert into uranium 236 and then it split into krypton and barium, and on an average in one reaction, in one breaking
or you can say in one such reaction there are average 2.5 neutrons are there. ठीक है, so I will tell you it is average, ध्यान रखिएगा 2.5 न्यूट्रॉन नहीं होंगे, 2 होंगे या 3 होंगे, it is average. So जितनी भी reactions होगी, let's say there are 2 reactions, so total 5 neutrons are there. इसके बाद बात सेकेंड प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन. अभी न्यूक्लियर फ्यूजन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है सन. व्हाट इज हैपनिंग इन न्यूक्लियर फ्यूजन? न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस वेयर टू लाइटर न्यूक्लियस कंबाइन टुगेदर. अब देखिए, वी हैव ए लाइटर न्यूक्लियर ड्यूटेरियम, अदर इज ट्रिटियम, सो बोथ विल कंबाइन हियर एंड इट विल फॉर्म convert into helium, large amount of energy emits, and a neutron is also there, free neutron is also there. So in both the process, whether it is a nuclear fusion, whether it is nuclear fission, vast amount of energy is always released, and this is the our interest. I told you vast amount of energy is released. So this is our interest, is a vast amount of energy, a large amount of energy है, we want to use this large amount of energy, right. अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ कि मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है फिशन और फ्यूजन में कंपैरिजन करने के लिए. फिशन में आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने आपको बताया कि एक हैवी न्यूक्लियर है, हैवी सब्सटेंस है, इट विल ब्रेक इनटू टू, दिस इज हैवी, ब्रेक इनटू टू. और इसका एग्जांपल मैंने आपको जो दिखाया हुआ है, व्हाट इज इट, इसको आइडेंटिफाई करने की आप लोग कोशिश करिए, क्या चीज़ है ये. यस, इट इज़ न्यूक्लियर बम, एटम बम. क्लियर. ये दूसरा डायग्राम मैंने आपको दिखाया फ्यूजन का, two lighter, two lighter nucleus combine into one, so it will happen in, इसको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए. व्हाट इज दिस फिगर, दिस फिगर इज ऑफ सन. ठीक है. इसके बाद मैं थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहूँगा दोनों का जो डिफ्रेंशिएट है न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन का. अगर फिशन की हम बात करते हैं तो देखिए फिशन में व्हेन हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियन इज बम्बार्ड विद न्यूट्रॉन्स, द न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू two fragment of equal mass and energy is released. Energy is released, ये एनर्जी हमारे काम की है, यही एनर्जी हमें चाहिए, इसी एनर्जी को हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज कर रहे हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं फ्यूजन की बात करता हूँ, लाइट एलिमेंट्स फ्यूज टुगेदर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. अब ये सन में होता है, जो रिलीज ऑफ एनर्जी है ये हमें सन से मिलती है. About 1000 of the mass is converted into energy, and here it is possible to have 4000 mass converted into energy. Clear? Nuclear reaction residual problem is great. Here residual problem is very less. Next अगर मैं बात करूँ, amount of radioactive material in a fission reactor is very high. While in this case a possible advantage is that total amount of radioactive material in a working fusion reactor is likely to be very much less that in a fission reactor. Important point है. In the fusion, in the fission, because of higher radioactive material, health hazards are very high in case of accident. And in this case, because there are lesser radioactive material, so health hazards are much less as compared to nuclear fission. In the fission, it is possible to construct self-sustained fission reactors and have positive energy release. And in the fusion, it is extremely difficult to construct controlled fusion reactor. In the fission, manageable temperature are obtained, while in the fusion needs unmanageable temperature like 30 million degree for fusion process to occur. So very high temperature, right? In the fission, raw fissionable material is not available in plenty. So large quantity में जो fissionable material है वो available नहीं है. While in case of fusion, reserve of deuterium and fusion elements are available in large quantity. So these are the differences, or you can say fission versus fusion processes, right? इसके बाद हम थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट और एटॉमिक पावर प्लांट की, कि ये कंसेप्ट कहाँ से आया माइंड में. सो फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन लैब. ये जो न्यूक्लियर प्रोसेस है, जो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन की गई थी लैब में की गई थी एट 20 दिसंबर 1951 इन आर्को इडाहो यूएसए, राइट. बट यूएसए में सबसे पहले लैब में तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर लिया, बट सबसे पहला जो कमर्शियल यूज था इसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, इट वाज इन रशिया एट 26 जून 1954 इन ओबनिस्क.
राइट। और अगर हम आज प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो थ्रू आउट वर्ल्ड देर आर 439 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन 32 कंट्रीज एंड दे आर प्रोड्यूसिंग अप्रॉक्सीमेटली 390 गीगावाट। इंडिया की अगर हम बात करते हैं, बिकॉज वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंडिया, तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंटली वी आर हैविंग 22 रिएक्टर्स एंड प्रोड्यूसिंग अप्रॉक्सीमेटली 6780 मेगावाट is the generation capacity, and Tarapur atomic power station was the first nuclear power plant which is in Maharashtra, India, right. इसके बाद थोड़ा सा वर्किंग प्रिंसिपल की हम बात करते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। सो आई टोल्ड यू कि एक हैवी मटेरियल होता है, उस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं। सो इट इज़ ऑलरेडी मेंशन हियर, यू कैन से व्हेन अ न्यूट्रॉन स्ट्राइक्स एन एटम ऑफ यूरेनियम और प्लूटोनियम, it split into two lighter atoms and release high energy simultaneously। और मैंने बताया कि ये हाई एनर्जी हमारी रिक्वायरमेंट है, यही हमें चाहिए। मोर एनर्जी इज रिलीज ईच टाइम अनदर एटम स्प्लिट्स, दिस इज कॉल्ड अ चेन रिएक्शन, राइट। एक देखिए मैंने लिखा हुआ है यूरेनियम 235, इसके ऊपर हमने एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक किया। सो क्या बन गया यहाँ पर, अगर आप देखना चाहें, सो बेरियम 141 एंड क्रिप्टॉन 92 बन गया। ये एवरेज है 2.5 लिखा है मैंने, 2.5 न्यूट्रॉन, दिस इज एवरेज, मींस इन वन रिएक्शन देयर इज एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन। सो अगर दो रिएक्शन है तो 5 न्यूट्रॉन्स होंगे यहाँ पर, एंड इन ईच रिएक्शन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड, राइट। अब ये जो न्यूट्रॉन्स यहाँ से बन रहे हैं 2.5 न्यूट्रॉन्स, these neutrons produced are very fast and can be made to fission other nucleus of uranium 235, thus setting up a chain reaction, right. Out of these 2.5 neutron, only one neutron is used for chain reaction, only one neutron is used, right. मैंने आपको बताया 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी रिलीज होती है। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻19 -19 जूल। So whenever I am talking about 1 mega electron volt, it means 10⁻6 electron volt। so आप कैलकुलेट कर लें कि एक रिएक्शन में कितनी एनर्जी हमें मिल रही है, और इफ़ देयर इज ए चेन रिएक्शन तो कितनी एनर्जी हमको अवेलेबल होगी। मैं एडवांटेज की बात करता हूँ यहाँ पर, वी आर टॉकिंग अबाउट एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो देर आर वेरी मच एडवांटेज, लार्ज एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। एज देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस इज वेरी लेस एज कंपेयर टू अदर पावर प्लांट्स। चाहे आप स्टीम पावर प्लांट की बात करें, यू आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और एनी अदर टाइप ऑफ पावर प्लांट, सो रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस इज वेरी लेस एज कंपेयर टू अदर पावर प्लांट, राइट। न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन मीट द लार्ज पावर डिमांड एट वेरी रीजनेबल कॉस्ट। ऑल्सो दे गिव बेटर परफॉर्मेंस एट हाई लोड factor. If I am talking about the fuel, a nuclear power plant use very less fuel as compared to fossil fuel plant. 1 metric ton of uranium, 1 metric ton of uranium fuel, it will give the energy as equal as given by the 3 million metric ton of the coal as well as 12 million barrel of the oil। इतनी एनर्जी एक मीट्रिक टन ऑफ यूरेनियम फ्यूल से मिलती है, राइट। सो यू कैन, अच्छा ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है इसमें डेली हमें यूरेनियम को फिल नहीं करना, यू फिल एट ए टाइम, और कई महीनों के लिए आप भूल जाइए। जैसे मैं कैंडू रिएक्टर की बात करूंगा मैं आगे, इट इज़ ए टाइप ऑफ रिएक्टर। कैंडू रिएक्टर में एक बार फ्यूल फिल करते हैं और लगभग 6 मंथ तक आपको दोबारा फ्यूल नहीं करना। इट मीन्स आपको स्टॉक में फ्यूल नहीं रखना, उसका वेस्ट नहीं है। जैसे थर्मल पावर प्लांट में था, आपको 30 डेज का कोल रखना है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ द स्पेस इज रिक्वायर्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ द कोल इज रिक्वायर्ड। उसकी ऐश को रखने के लिए आपको अलग से स्पेस चाहिए, सो देर इज नो ऐश, राइट। Since the fuel consumption is very small as compared to conventional type of power plant, so there is saving in the cost of fuel transportation also. The nuclear power plant, besides producing large amount of power, they produce valuable fissionable material which is produced when fuel is renewed. मीन्स केमिकल रिएक्शंस हो चुकी, न्यूक्लियर रिएक्शन हो चुकी, चेन रिएक्शन हो चुकी, वहाँ से एनर्जी हम यूज़ कर चुके, जो बच गया दैट इज ऑल्सो वैल्यूएबल। उसको ऐसे नहीं फेंक देते, उसको भी यूज़ करते, दैट इज ऑल्सो वैल्यूएबल मटेरियल। द ऑपरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ वेरी मच रिलायबल, मीन्स वेदर कंडीशंस का इस पर कोई असर नहीं पड़ता, वेदर देयर इज ए रेनी सीजन और ड्राई सीजन, सो इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
Nuclear power plant are not affected by weather conditions. Bigger capacity of nuclear power plant is an additional advantage. आप चाहे कितना भी बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा लें, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. द एक्सपेंडिचर ऑन मेटल स्ट्रक्चर, पाइपिंग, स्टोरेज मैकेनिज्म इज मच लोअर देन ए कोल बर्निंग पावर प्लांट. मीन्स जो मेटलिक स्ट्रक्चर जैसे पाइपलाइन है, स्टोरेज मैकेनिज्म है या कोई और मैकेनिज्म है, उस पर जो भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो एक्सपेंसेस न्यूक्लियर पावर प्लांट में काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू थर्मल पावर प्लांट. बट स्टिल इतने सारे एडवांटेजेस होने के बाद ही वी आर नॉट यूजिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट. सो व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्यों नहीं यूज़ करते? तो देखिए सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही कि जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है ना, इट इज़ नॉट अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी. एटलीस्ट इंडिया में तो लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, राइट. सो द कैपिटल कॉस्ट ऑफ ए न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज़ ऑलवेज हाई. कैपिटल कॉस्ट मीन्स इनिशियल कॉस्ट. आपको न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना है एंड न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए काफ़ी सारा कॉस्ट लगती है, इन्वॉल्व होती है इसमें. द डेंजर ऑफ रेडियो एक्टिव एक्टिविटी ऑलवेज परसिस्ट इन द न्यूक्लियर स्टेशन, राइट. सो इसमें बहुत सारी प्रिकॉशंस हमें लेनी होती है, केयर करनी होती है. दिस प्लांट कैन नॉट बी ऑपरेटेड एट वेरिंग लोड एफिशिएंटली. सो अगर वेरिंग लोड है, बार बार लोड फ्लक्चुएट हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी आपको नहीं मिलेगी. मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लांट इज़ वेरी हाई बिकॉज यू नो because lack of standardization and high salary of trained staff in the field of specialization. So maintenance करने वाले जो persons हैं, they are very much trained, so their salaries are very high. Still जो parts आप use कर रहे हैं, those parts are also specialized part. So that's why the cost of maintenance is very high. The disposal of fission product is a big problem. जो भी आपने रेडियोएक्टिव मटेरियल यूज़ किया उसके बाद जो वेस्ट बच गया उसका, ठीक है, उसको हम यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग उसको अगर कहीं रखना चाहें, कहीं फेंकना चाहें, फॉर द टाइम बिंग डिस्पोज करना चाहें, तो इट इज़ ए बिग प्रॉब्लम. इट अफेक्ट द एनवायरनमेंट. वर्किंग कंडीशंस इन द न्यूक्लियर पावर स्टेशंस आर ऑलवेज डिट्रीमेंटल टू द हेल्थ ऑफ द वर्कर. सो कितना भी कोशिश कर लें, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं. स्टिल इतने सारे एडवांटेजेस होने के बाद भी हम न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज़ कर रहे हैं, राइट. सो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए हमें साइट सिलेक्ट करनी होती है. कौन सी साइट को हम सिलेक्ट करें न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए? सो डियर फ्रेंड्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जो साइट हम सिलेक्ट करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इन केस ऑफ एक्सप्लोजन देयर इज ए रेडियो एक्टिविटी, राइट. तो प्रॉक्सिमिटी टू लोड सेंटर, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड यूज़, मेट्रियोलॉजी, जियोलॉजी, सिस्मोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने. आई विल डिस्कस दीज पॉइंट्स वन बाय वन. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव मेंशन प्रॉक्सिमिटी टू द लोड सेंटर, राइट. प्रॉक्सिमिटी टू द लोड सेंटर की मैं बात करता हूँ अगर मैं, सो प्रॉक्सिमिटी टू द लोड सेंटर में देखिए, लोड सेंटर के पास आपको होना चाहिए. इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर कंसिडरेबल डिस्टेंस बाय पावर ट्रांसमिशन लाइन. ग्रिड का ज़माना है आज की डेट में, थ्रू आउट सभी जगह ग्रिड है. सो ग्रिड में केबल्स हैं, ट्रांसमिशन वायर्स हैं, यू कैन सप्लाई द पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. बट बिकॉज ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ द लाइन एंड राइट ऑफ वे एंड ट्रांसमिशन लॉस एंड इकोनॉमिक पेनल्टीज इनकर्ड विद increases the distance between generating stations and load center. So जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा पावर प्लांट के बीच में और लोड सेंटर के बीच में, आपको ट्रांसमिशन लाइन उतनी ज़्यादा होनी ले करनी पड़ेगी. चलिए अगर ट्रांसमिशन लाइन भी है तो ट्रांसमिशन आप करेंगे, ट्रांसमिशन में क्या होगा, हमेशा लॉसेज होते हैं, राइट. सो ये जो लॉसेज हैं, दीज आर इनडायरेक्टली इकोनॉमिक पेनल्टी ऑन द नेशन. इट इज़ अपरेंट दैट द क्लोजर द पावर प्लांट साइट कैन बी लोकेटेड टू द लोड सेंटर, राइट. So while meeting other requirement such as reasonable land cost, adequate cooling water, local zone restriction, accessibility for fuel shipment etc. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, आपको बाकी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ऐसी साइट सिलेक्ट करनी है जो लोड सेंटर के पास में हो, राइट. सो द लोअर कैन बी द कॉस्ट ऑफ द पावर डिलीवर टू द कंज्यूमर. सो जितना लोड सेंटर के पास होंगे उतना ट्रांसमिशन कॉस्ट कम हो जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. अब देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसको पॉपुलेशन यानी थिन हाईली डेंस एरिया के बीच में या सिटी के बीच में इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते. वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू इंस्टॉल सच टाइप ऑफ पावर प्लांट अवे फ्रॉम द सिटी. सो सिंस पावर रिएक्टर्स मस्ट बी लोकेटेड रीजनेबली
close to the load center, but the population distribution around the site is a necessary considerable in the evaluation of a nuclear power plant site. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को अपने सिटी के सेंटर में नहीं लगाना, सिटी से दूर लगाना है। लेकिन पहला मैंने बताया कि क्लोज टू लोड सेंटर, सो यू हैव टू ऑप्टिमाइज ऑल द फैक्टर्स, ऑल द पॉइंट्स कि भाई लोड सेंटर के भी प्रॉक्सिमिटी में हो, पास में हो, और पॉपुलेशन से भी थोड़ा सा दूर रहे। द डिस्टेंस, द साइट, मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस एंड द अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल विच कुड बी रिलीज्ड फ्रॉम द प्लांट ड्यूरिंग ए मेजर एक्सीडेंट, ध्यान रखिएगा, विच कुड बी रिलीज, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा रिलीज होगा, ठीक है, विच कुड बी रिलीज फ्रॉम द प्लांट ड्यूरिंग अ मेजर एक्सीडेंट। इंडिया में भी ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, ध्यान रखना। मेजर एक्सीडेंट आर यूज टू इवेल्युएट द सुटेबिलिटी ऑफ द साइट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ सेफ्टी टू द पब्लिक। In addition to the permanent population surrounding a site, it is also necessary to consider part-time peak in population, such as during the day, during the weekend, in the recreational areas, during the festival season, right? तो ये सब चीज़ें भी आपको consider करनी है. So I have mentioned that reasonable thin populated area is always preferred. Reasonable thin populated area is always preferred. इसके बाद हम बात करते हैं लैंड यूज़ की. देखिए अब लैंड यूज़ कैसी होनी चाहिए, आपने ध्यान रखना है कि हम हमेशा वी ऑलवेज ट्राई कि भी जो भी हम लैंड यूज़ कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर लैंड ना हो, ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है. सो यहाँ पर भी हम कहेंगे लैंड यूज़, द यूज़ टू विच द लैंड सराउंडिंग अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज बीइंग पुट even though it may not be dense populated but may have an effect on the suitability of site for a nuclear power plant. For example, if land is used for agriculture, ingestion of food which has been contaminated by a fallout after an accident might conceivably result in a greater radiation dose to the public than might be received from direct exposure to radioactive material transported through the plant downwind. ठीक है. सिमिलरली अवर कंसर्न इज विद मेराइन लाइफ, स्टेशनरी शेलफिश इन पर्टिकुलर, कि भाई बिकॉज जो रेडियो एक्टिव का जो एफ्यूलेंट होगा इसको भी हम कंट्रोल्ड वे में किसी वाटर बॉडी में रिलीज करेंगे. सो वेन एवर वी आर रिलीजिंग इट इन वाटर बॉडी तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो जो मेराइन लाइफ है या स्टेशनरी शेलफिश है ये इनको कोई डेंजर ना हो, ये इनके लिए हार्मफुल ना हो, ठीक है. सो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम the concentration of radioactive consumable could built up to level approaching maximum permissible concentration. अच्छा एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है इसमें से काफ़ी सारी हम रेडियो एक्टिविटी गैस भी रिलीज़ करते हैं. तो ये जो गैस रिलीज़ करते हैं ये एयर की डायरेक्शन को देख करके और वहाँ पर उस डायरेक्शन में कितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में छोड़ा गैस को रिलीज़ किया जाता है सो दैट एयर की वेलोसिटी के साथ एक लार्ज एरिया में चली जाए और वहाँ की पॉपुलेशन को ये कोई भी नुकसान ना करे, हार्मफुल ना हो. ये मीटरोलॉजी की बात करते हैं. मीटरोलॉजी इज ऑफ कंसर्न बोथ फॉर नॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ गैसियस रेडियोएक्टिव वेस्ट एंड फॉर मच लेस लाइकली रिलीज ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयरबॉर्न रेडियो एक्टिव मटीरियल विच माइट रिजल्ट फ्रॉम एन एक्सीडेंट, राइट. अ नंबर ऑफ मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल आर नॉर्मली इवेल्युएटेड फॉर द साइट सिलेक्शन. Among these variables कौन कौन से वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे नंबर 1 विंड डायरेक्शन फ्रीक्वेंसीज, राइट. नंबर 2 पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 2 में क्या है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. नंबर 3 विंड वेलोसिटीज एंड द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, ऑफ ईच वेलोसिटी इंक्रीमेंट. फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ काम्स, एटमॉस्फेरिक लैप्स रेट, ठीक है. Frequency and duration of inversion conditions, atmospheric dilution is increased and thus the meteorological conditions are more favorable the more unstable the atmosphere and the greater the wind velocity. So meteorological condition आपको ध्यान रखनी है, ठीक है. इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर कहा कि रेन आउट वगैरह का भी आपको ध्यान रखना है. फिर हम बात करते हैं जियोलॉजिकल कंडीशन की. इन्वेस्टिगेशन ऑफ द साइट जियोलॉजी इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. देखिए जब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, कहीं भी बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हैवी स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ न्यूक्लियर रिएक्टर. सो न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ वेरी हैवी स्ट्रक्चर. सो जियोलॉजिकल कंडीशंस को आपको स्टडी करना जरूरी है क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है दैट सॉइल मस्ट बियर द लोड ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है.
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट बोरिंग आर यूजुअली मेड फॉर दिस पर्पज। जैसे कोई भी स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो उससे पहले हम सॉइल की टेस्टिंग करते हैं, उसके लिए टेस्ट बोरिंग करते हैं, वहाँ से सैंपल लेते हैं, सैंपल लेने के बाद उसको हम लैब में चेक करते हैं, और लैब में चेक करने के बाद हम बताते हैं वेदर दिस लैंड इज सूटेबल फॉर द साइट सिलेक्शन और नॉट, वेदर दिस लैंड इज सूटेबल फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट, दिस लैंड कैन बियर द वेट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर और नॉट। ठीक है, इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम है कि अर्थ स्लाइड ड्यू टू सॉइल इंस्टेबिलिटी, राइट, subsidence due to removal of oil or water from subsurface formation and ground displacement during earthquake are also careful considerable। ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद पॉइंट है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिस्मोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इट ऑलवेज इंडिकेट द अर्थक्वेक। तो सिस्मोलॉजी इज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न इज एरिया ऑफ हाई सिस्मिक एक्टिविटी because the possibility that the force which can produced by earthquake could be sufficient to damage the reactor system and rupture the containment structure। और अगर मान लीजिए किसी भी रीजन से न्यूक्लियर रिएक्टर में रप्चर होता है, क्रैक आता है, फेल होता है, एक्सप्लोजन होता है, सो कितनी सारी रेडियो एक्टिविटी वहाँ पर हो जाएगी, कितने सारे लोग मर जाएंगे, कितना सारा नुकसान हो जाएगा। तो इस सबको देखते हुए ये जो पॉइंट है हमारा अर्थक्वेक का पॉइंट, सिस्मोलॉजी पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो केयरफुल कंसिडरेशन इज गिवन टू जनरल सिस्मिक हिस्ट्रीज ऑफ द एरिया इंक्लूडिंग a description of all earthquake which have been observed at the site, their magnitude, their intensity and frequency spectrum for which structure could be analyzed। Conservative earthquake design factor usually substantially greater than those required by uniform building code are used for critical equipment and structure in areas of high seismic activity। अच्छा, ये जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर एक और प्रॉब्लम हो सकती है, सुनामी। सो वेन एवर यू आर कंस्ट्रक्टिंग और यू आर आइडेंटिफाइंग ए साइट फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट इन कोस्टल एरियाज, सो ऑलवेज टेक केयर फॉर सुनामीज एंड कंसिडर द हिस्ट्री ऑफ द सुनामी ऑल्सो। ठीक है, सो एक लास्ट पॉइंट है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी क्यों चाहिए, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो हाइड्रोलॉजी को आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज वो कूलिंग टावर वहाँ पर है, सो वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। सो देयर शुड बी अ वाटर सोर्स लाइक कैनाल और रिवर मस्ट बी देयर। और ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ पर हम ग्राउंड वाटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो ऑलवेज वी हैव टू यूज़ द वाटर बॉडी, सोर्स ऑफ द वाटर बॉडी, वेदर इट इज़ रिवर और कैनाल। सो यू हैव टू टेक केयर। और साथ में क्या है कि जो हमारा एफ्यूलेंट है, उस एफ्यूलेंट को काफ़ी लो रेडियो एक्टिव में कन्वर्ट करके उसको भी हमें वाटर बॉडी में रिलीज करना होता है। सो you have to take care about this also। So this is about the introduction of nuclear power plant। So in the next lecture we will discuss further। Thank you very much।